اندازہ ہوا ہے کہ لائٹ کتنی اہم ہے؟ جی اہم تو ہے، جس سے فائدے ہو رہے ہیں۔ تاریک گلیوں میں پہلی کرن، وطن عزیز پاکستان کی ان گنت گلیاں، بے شمار کوچے، لاتعداد گھر اور ناقابل حساب ڈگر اس قدر تاریک ہیں جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ اس ارض پاک کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے گاؤں میں پیدا ہو کر وہیں پر پوری عمر گزار کر وہیں لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور تا عمر شہر تو دور، شہر تک جانے والی پکی سڑک بھی دیکھ نہیں پاتے۔ ایسے تمام ہم وطنوں کے غموں کا مداوع کرنا تو ناممکن، اندازہ کرنا بھی محال ہے۔ پھر بھی جہاں تک ممکن ہے، پہلی کرن ایسی ہر تاریک گلی میں جگنوں کی مانند ٹمٹمانے میں دیر نہیں کر رہی، جہاں جہاں پر دمکنا اس کے بس میں ہے، تاکہ اس حسین ملک کی زیادہ سے زیادہ گلیاں اندھیروں کے موسم سے نجات پا سکیں۔ یہ پہلی کرن کی مشعل پاکستان کی قابل فخر خدمات انجام دینے والی چند اہم شخصیات میں سر فہرست جناب پرویز لودھی کی جلائی ہوئی ہے، جو پاکستان کی ہر آنکھ میں سرخروئی اور کامیابی کی چمک کو دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ یہ وہی پہلی کرن ہے جو کبھی رنی کوٹ کی بلندیوں پر واقع ایسے دیہاتوں تک پہنچی جو شہری زندگی سے نہ صرف بظاہر میلوں دور ہیں، بلکہ 21ویں صدی کی سہولیات سے برس برس پیچھے کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہیں۔ تو کبھی بڈرو جبل تک اس کرن کی ضیاء نے اجالے بکھیرے۔ صرف ایسے دیہات ہی نہیں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں کئی ایسے اندھیرے راستے، توانائی کے بحران کا شدید شکار علاقے اور تاریک گھر ایسے بھی ہیں جہاں غربت اپنے پر پھیلائے اپنی بھیانک موجودگی سے پوری طرح براجمان ہے۔ پہلی کرن نے وہاں بھی چمکنے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ اس روشنی سے پاکستان کا ہر کوچہ شمسی توانائی سے چلنے والی LED لائٹس کی روشنی اور ہر ذہن علم و آگہی کے اجالے سے دمکنے لگے۔ حکیم اللہ بٹائی کالونی کورنگی کراچی کے پسماندہ علاقے کا رہائشی تقریباً 22 برس کا ایک ایسا نوجوان ہے جو بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بیچ کر اپنی چھوٹی سی کیبن کے ذریعے اپنی غربت کی آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف و مگن ہے، جو پہلے ماہانہ صرف 1600 روپے محض 2 انرجی سیورز جلانے کا بل ادا کیا کرتا تھا، جو بھی وہ شام کے چند گھنٹے ہی جلایا کرتا تھا۔ جب پہلی کرن حکیم اللہ کی دہلیز تک پہنچی تو اس نے اس کی آنکھیں چکا چوند کر دیں، اور اس کی آنکھوں کی چمک میں اس کے روشن مستقبل کا پیش خیمہ نظر آنے لگا۔ پہلی کرن نے اس کو مفت LED لائٹ فراہم کر کے انرجی سیور اور اس کے بل بھرنے سے بری الزما کر کے اس کو بچت کا احساس دلایا، اور اب وہ تقریباً 2500 روپے ماہانہ بچا کر اپنے 4 سال کے چھوٹے بھائی کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے بھی قابل ہو گیا، اور اپنے بیمار والدین کا علاج کروانے کے لیے بھی خرچہ نکالنا حکیم اللہ کے لیے ممکن ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لائٹ آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے، جی، یہ کب سے استعمال کریں آپ؟ 4 مہینے ہو گئے اس کے۔ 4 مہینے سے استعمال کر رہے ہیں؟ جی۔ اس کے استعمال سے کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ کافی فائدہ اس میں۔ کیا فائدہ ہے؟ پہلے کیا اس کی جگہ پر کیا استعمال کرتے تھے؟ پہلے اس کی جگہ میں لائٹ استعمال کرتے تھے۔ لائٹ یعنی سیور استعمال کرتے جی، تھے؟ انرجی سیور استعمال جی۔ کرتے تھے؟ کتنے سیور استعمال کرتے تھے؟ 2 سیور استعمال کرتے، ایک باہر ہوتا تھا ایک اندر ہوتا تھا۔ ایک باہر یعنی ایک یہاں لگا رہتا جی، تھا؟ ایک یہاں پہ لگا رہتا، ایک اندر لگا رہتا تھا۔ تو اس کا کتنا بل بھرتے تھے آپ؟ 1500-1600 روپے بھرتے تھے۔ 1500-1600 روپے؟ کہاں سے کنیکشن کہاں سے لیا؟ سامنے سے لی تھی، فلیٹوں سے لیا تھا؟ جی۔ پھر وہ 1500-1600 روپے وہ لیتے تھے آپ سے؟ جی، بل کے لیتے تھے۔ اچھا، اب یہ جب سے استعمال کر رہے ہیں تب سے آپ وہ لائٹ استعمال نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ نہیں استعمال، چاہے بجلی ہو یا نہ ہو آپ اسی بھی استعمال بس اسی کو استعمال کرتے ہیں، مغرب سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، کتنی دیر چارج کرتے ہیں آپ اس کے پینل کو؟ اس کا نام ہے شام تک چارج ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، صبح کتنے بجے کیبن کھولتے ہیں آپ؟ صبح 12 بجے کھولتا ہوں۔ 12 بجے کھولتے ہیں، آتے کے ساتھ آپ پینل اوپر رکھ لیتے جی، ہیں؟ یہ اوپر رکھ کے بس پن لگا کے اچھا، چارج ہوتے ہیں۔ استعمال میں کیسا مشکل ہے یا آسان ہے؟ استعمال تو بالکل آسان ہے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز سے چلتی ہے یہ لائٹ؟ یہ سورج سے چارج ہوتی ہے۔
सूरज से चार्ज होती है। अच्छा, सूरज की रोशनी इसमें जब आती है तो कितनी देर तक चल जाती है? मगरिब के बाद से आप इस्तेमाल करना शुरू करते जी हैं? मगरिब के बाद इस्तेमाल करते हैं हाँ। 12 बजे तक चलती रहती है। रात के 12 बजे तक? जी। अच्छा, पहले आप जब खोलते थे केबिन तो कितने बजे तक, रात को कितने बजे तक आप करते थे? 10 बजे तक बंद कर देते थे। क्या नाम है, जब लाइट इमरजेंसी लाइट लगा देते थे, लाइट जाने के बाद जब वो खत्म है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर देते थे। और अब सुकून से बंद करने शुरू कर देते कितने बजे तक बंद करते हैं? 12 बजे। 12 बजे जी। तक। तो ये पहले 2 घंटे का फर्क आ गया है आपके जी। उसमें, तो फिर उसमें रोजगार कुछ बेहतर होता है। शुक्र है, बेहतर हो जाता अच्छा, आप मजबूरी तौर पर बताएं कि एक तो 1500-1600 रुपए आपके वो बचते हैं, है। जी ठीक है, जो आप एक महीने के बिल की अदायगी के बच जाते हैं। उसके अलावा 2 घंटे की रोजी आप रोजाना करते हैं, जी। तो मजबूरी तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि 2000-2500 रुपए का फायदा आपको महीने में है। जी। तो क्या किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उन वो पैसों? भाई के पढ़ाई पे लग जाते हैं और वालदा की क्या नाम है उस पर दवाई पे लग जाते हैं। आपके छोटे भाई की पढ़ाई पर? जी। छोटे भाई का नाम क्या है? छोटे भाई का नाम इब्राहिम है। कौन सी क्लास में? दूसरी तीसरी में भी जाने वाले हैं। आपने तालीम हासिल नहीं की? नहीं। आप अपने छोटे भाई को तालीम दे रहे हैं? जी। अच्छा, अगर ये पैसे नहीं बचते आपके तो आप उनको तालीम नहीं दिलवा सकते थे? नहीं। अच्छा, तो अब अपने भाई को आप तालीम दिलवा रहे हैं और इससे ये जो फ़ायदा हुआ है लाइट से, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? जी। अच्छा, तो वो जब इससे पहले जब आप लाइट इस्तेमाल करते थे तो इतने पैसे नहीं बचते थे कि आप नहीं इलाज इतने- करवा इतने सकें? नहीं बचे। मुश्किल से, दिक्कत से इलाज करवाते जी, थे? बस कभी सामान से निकाल ले तो सामान खाली होता है केबिन, फिर लाना उधार करके भरते थे। अब आपको आसानी से इलाज बिल्कुल। मुआवजे के लिए पैसे मिल जाते हैं? अब यानी आसानी से इस बदल लाइट से आपको 2 फ़ायदे हुए। जी, एक तो 2। आप अपने भाई की तालीम जारी रख रहे हैं और दूसरा अपनी वालदा के इलाज पर आप खर्चा कर रहे हैं। तो आप मुतमईन हैं जो रोज़ी हो रही है इस लाइट के आने के बाद? जी। मुतमईन हैं जी और आप समझते हैं कि आप अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ पैसे बचा रहे हैं? जी, बिल्कुल अच्छा, बचा। उन पैसों को ज़ाया तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं। पक्की बात है? जी। आप अपने भाई की एजुकेशन तालीम कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे? जी। कब तक, कितनी जमातें पढ़वाएंगे? जब तक पढ़ते रहेगा। उसी कॉलोनी का एक और रिहायशी यासिर, जो आलू की चिप्स बेचकर अपने घर के अखराजात का बोझ उठाता है और उसकी तमाम तर खुशियों का महवर व मरकज ये एक ठेला है। ये अपने घर के तमाम अफराद की भूख की भट्टी को इसी ठेले के जरिए ही ठंडा करता है, जो पहली किरण की तोहफे सोलर एनर्जी पर चलने वाली LED लाइट के हुसूल से कबल हर माह 1500 रुपए की बैटरी चार्ज करवाकर उस पर एनर्जी सेवर जलाकर अपने ठेले के लिए तवानाई उधार लिया करता था और रात के 10 बजे ठेला घर लाकर सो जाता था। पहली किरण ने उसको अपने सूरज से अपनी रोशनी हासिल करने का शऊर देकर इस काबिल कर दिया कि वो अपने छोटे भाई की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करने में अब कोई दिक्कत महसूस नहीं करता और इस अज़्म का इजहार करता है कि उसका भाई जहां तक पढ़ेगा यासिर उसको जरूर पढ़ाएगा। अब यासिर हर माह 3000 रुपए मजीद कमाता है और उसमें मेहनत का जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है। चिप्स का काम कब से कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से यहीं पे कर रहे हैं? जी कोरंगी में, मिठाई कॉलोनी में? जी, इधर ही कर रहा हूँ इसी जगह पे। तो मुझे बताएं कि ये जो लाइट टंगी हुई है जी ये किस चीज़ से चलती है? जी, धूप से चार्ज होती है। धूप से चार्ज होती है? जी। अच्छा, और कितनी देर चार्ज करनी पड़ती है? 8-9 घंटे चार्ज करते हैं। 8-9 घंटे के बाद कितनी देर चल जाती है? 8-9 घंटे चल जाती है? जी, 8-9 घंटे से ज़्यादा चलती है ये। अच्छा अच्छा, इस लाइट का आपको पहले पता था? इस लाइट के इस्तेमाल करने से पहले पता था कि इस किस्म की कोई लाइट होती है जो सूरज की रोशनी भी चलती है? नहीं जी, पहले नहीं मालूम था। इसके इस्तेमाल के बाद आपको मालूम हुआ है? जी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इसका फ़ायदा क्या है आपको? इससे पहले आप जो ये रोज़गार करते थे ठेले पे, कौन सी लाइट जलाते थे? पहले इस पे बैटरी यूज़ कर रहा था। बैटरी यूज़ करते? बैटरी जी। में कौन सी लाइट चलती थी? बैटरी पे सेवर चलाता था। सेवर चलाते थे? जी। तो बैटरी कहाँ से चार्ज करते थे? बैटरी स्टाफ से चार्ज करता था, बैटरी वाले की दुकान से। वो कितने पैसे लेता था आपसे? वो 1500 रुपये लेता था महीने के। 1500 रुपये महीने के लेता जी। था? वो आपके डायरेक्ट बच गए इसके इस्तेमाल से? जी। अच्छा, इसको आप किस वक्त रखते हैं चार्ज के लिए और कहाँ पे रखते हैं? इसको छत के ऊपर रखता हूँ। अपने घर की? जी, घर की छत के ऊपर रखता हूँ। सुबह को रख देते हैं? सुबह 9 बजे रखता हूँ ठीक है। और दिन में 3-4 बजे उतार लेता हूँ इसको। अच्छा, 3-4 बजे तक फुल हो जाती है चार्ज, आप समझते हैं? जी। अच्छा, और शाम में आप लगा देते हैं? कितने बजे ठेला निकालते हैं आप? 4 बजे। 4 बजे ठेला लगाते हैं? जी। और मगरिब के बाद जब अंधेरा होता होगा तो आप ये लाइट जलाते होंगे? जी। और कितने बजे तक चल जाती है? ये यहाँ पे मैं 10 बजे तक चलाता हूँ इस लाइट को। 10 बजे तक चलाते हैं? जी। ठेला कितनी देर तक? 10 बजे तक होता है आपका? जी, 10 बजे तक होता है। इससे पहले जब वो लाइट थी तो कितनी देर तक आप यहाँ पर पहले मैं 9 बजे तक था, जब सेवर वाली बैटरी वाली लाइट थी। जी। 9 बजे तक था। अब 10 बजे अब तक? ये लाइट आई है, इससे फ़ायदा हो रहा है, तो 10 बजे तक हूँ मैं तो इधर। उस 1 घंटे में भी आपके रोजगार में इजाफा हुआ होगा? जी। तो मजबूरी तौर पर कितना समझते हैं? एक तो 1500 रुपये आपके वो बच रहे हैं, बैटरी वाले बच रहे हैं। जी। इसके अलावा 1-1 घंटे का रोज़ जो आप कर रहे हैं, रोज़ी कर रहे हैं, तो उससे आप मजबूरी तौर पर कितना समझते हैं कि महीने में कितना इजाफा हुआ होगा आपकी आमदनी में? महीने में 1000 रुपये कम से कम।
कम से कम यानी 2500-3000 रुपए तक आप बचा रहे हैं कि ये जो लाइट जब से आप इस्तेमाल करें, कितना अर्सा हुआ है इस लाइट को इस्तेमाल करते हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने में कोई शिकायत है इस लाइट में, कोई किसी किस्म की कोई शिकायत? नहीं जी, कोई शिकायत नहीं, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। नहीं। अच्छा, तो अब इससे जो आप 2500 रुपए या 3000 रुपए जो बचा रहे हैं, उससे आप उसको कहाँ पर खर्च कर रहे हैं अपने घर में? इसको भाई की पढ़ाई में खर्च कर देते हैं। भाई किस क्लास में बताया आपने? 6ठी क्लास में पढ़ता है। अच्छा, उसकी तालीम पर खर्च करते हैं जी। और बस जी उसमें तालीम में पूरे हो जाते हैं, जैसे कोरस आता है जी, कोरस में हो जाते उसको हैं। किताबें दिलवाते हैं, यूनिफॉर्म दिलवाते हैं जी। उसकी तालीम जारी रखेंगे? जी, कहाँ तक जारी रखेंगे? देखो कहाँ तक पढ़ता है। अच्छा, आजकल के इस लोड शेडिंग के दौर में जहाँ वैसे भी अगर आप इसको अगर लाइट पर चलाते तो आपको लोड शेडिंग की दुश्वारी होती, या बैटरी पर आप चला रहे थे तो 1500 पर आप उसके भर रहे थे। इस लाइट के आने के बाद आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है कि ये लाइट कितनी अहम है? जी अहम तो है, जिससे फ़ायदे हो रहे हैं। पहली किरण ने सूरज की रोशनी घर घर पहुंचाने का अज़्म ज़हनों की रोशनी से मशरूत रखकर हर कदम उठाया है। उसने हर ऐसे अज़्म वर्ग को ज़रिया रोशनी फराहम किया है जो उसके हुसूल से मेहनत और लगन को और बढ़ चढ़ कर अंजाम दे और इस मुल्क के कारगर शहरी की हैसियत से अपनी अहमियत को पहचाने। जनाब परवेज लोधी की जलाई हुई पहली किरण की तकनीकी जुजियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करने वाली शान टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के नायब सदर अयाज महमूद पहली किरण के फैलाव में शान टेक्नोलॉजीज के किरदार के हवाले से बताते हैं। Shan Technologies is also Pakistan's first manufacturing facility using solar-powered LED lights for its production lines. On top of it, all lights were manufactured using in-house resources by Pakistani skilled workforce trained at Shan Technologies facility in Karachi Export Processing Zone. Our ambition, diligence and vision help us in creating and supporting hundreds of jobs in USA and Pakistan. This has become a mission for us to bring hope of light to least privileged people. We are committed to provide product excellence to our customer regardless of their origin and nature. पहली किरण के तसव्वुर के खालिक और इस रोशन पैगाम की रूह रवां जनाब परवेज लोधी तो हमेशा ही से अपने रोशन कल्ब व नज़र से पाकिस्तान को रोशन और रक्षा करने के अज़्म का इयादा करते रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं ऐसी फील्ड में मेरा इनकलाबी रोल है जो कि आने वाले वक्तों की रोशनी बन जाएगी सारी दुनिया के लिए। LED लाइटिंग और LED लाइट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही कम बिजली की एनर्जी लेती हैं, बहुत ही कम। और क्योंकि इसमें मैंने 40 साल से काम करना शुरू किया हुआ और इसमें चेंजेस तो और पर पाकिस्तान के जो मैं देखता हूँ कि नॉट शहरों के बिजली के मसले ही नहीं बल्कि यहाँ इतने पुराने गांव हज़ारों की तादाद में हैं यहाँ, उसका मुझे बहुत अरसे से पता है। और अगर शहरों में बिजली नहीं है तो गांव में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो मुझे बहुत सालों से पता है कि दुनिया के बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनमें के बिजली पहुँचने में बहुत अरसा लगेगा। तो ये जो LED लाइट्स हैं ये मैं देखता हूँ कि ये कुदरती नेमत आ रही है जो कि आने वाले वक्तों में दुनिया के बेइंतहा गरीब इलाकों में एक उम्मीद की रोशनी, उसको आप रोशनी भी कह लें मगर उसके साथ साथ ये एक बहुत ज़बरदस्त उम्मीद की रोशनी भी है। ये तकरीबन मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप ये, क्योंकि मैंने ये LED लाइट बल्ब को पायनियर किया है पूरी दुनिया के लिए, 40 साल पहले शुरू किया था ये, कि हम लोग जो चीज़ बनाते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं और जो फिर उसकी सारी असेंबली कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में होती है, ये चीज़ें कुछ लोगों के पास 10-20 साल तक चल रही हैं। तो ये चीज़ ऐसी है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऐसी है कि आप अगर इसको प्रोफेशनली बनाएं और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसकी सही केयर करें तो ये तकरीबन कभी भी ख़राब होती ही नहीं। पहली किरण पाकिस्तान की हर गैर रोशन गली या घर तक ना भी पहुंच सके, हर गरीब और मोहताज तक निज़ाम शमसी के बादशाह
آفتاب اعظم کی ضیاء کا ذریعہ LED لائٹ نہ بھی پہنچا سکے، پھر بھی اس نے ذہنوں میں جو روشن انقلاب لانے کا آغاز کیا ہے، اس سے ہر پاکستانی شہری اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک روشن پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ضرور شروع کر دے گا، جو مستقبل کے ایک سرخرو اور ترقی یافتہ پاکستان کی نوید ہے۔